Good evening, everybody. बच्चे, I hope everybody is well, everybody is doing good. बच्चे, I think आप सबको पता होगा कि आपका सिलेबस रिलीज हो गया है फॉर दिस सेशन. क्लास 10th, 9th, 11th, 12th सबका सिलेबस रिलीज हो चुका है एंड आई होप आप लोगों ने अपना सिलेबस देख भी लिया होगा. ठीक है. सो सम ऑफ द चैप्टर्स हैव बीन डिलीटेड एज वाज डन लास्ट ईयर आल्सो. ठीक है. अर्लियर सीबीएसई वाज सेइंग कि हम चैप्टर्स डिलीट नहीं करेंगे, we will be just dividing it into two parts, but what has happened is now what syllabus we have got as of term 1 and term 2, they have divided the chapters और topics भी delete हैं और कुछ chapters भी delete हैं. Okay. So I just want to share with you term 1 syllabus. term 1 में बचे आपको bio में से सिर्फ live process आएगा, that's it. So live process we have already completed. And from chemistry you will be getting chemical reactions, acid bases salts जो अब हम present कर रहे हैं, and metals and non metals. और बच्चे metals non metals में भी what they have done is they have removed metallurgy and corrosion. तो सिर्फ initial part जो है chapter का वो आएगा term 1 के लिए. All right. And in physics, electricity and magnetism they have been pushed to term 2. So I think whatever happens for good. We were earlier planning to start up with magnetic effects of current, पर चलो आप लोगों ने ही जिद करी and we started up with light, so that worked in our favor. Light, reflection and refraction, and human eye and colorful world, ये बचे term 1 में आ रहा है, and electricity and magnetic effects of current is pushed to term 2. Okay. So term 1 में chemistry में chemical reactions equations, acid bases salts complete है. chemistry का जो third chapter है metals non metals, that is only physical properties and chemical properties and formation of ionic compounds, वही portion आ रहा है metal non metal में. physics में आपको आएगा reflection refraction and human eye and colorful world. human eye and colorful world में भी बचे आपको structure of eye and defects, वो remove हो गया है, बाकी सारा आएगा. और बायो में सिर्फ एक ही चैप्टर आएगा टर्म 1 में, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हैज बीन डिलीटेड. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड आई थिंक यू आर अवेयर कि जो आपका पोर्शन है दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टर्म 1 एंड टर्म 2. सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि बच्चे टर्म 1 में जो आपका पोर्शन है वो उन्होंने जो हमें कहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आएंगे. सो बच्चे वी हैव टू फोकस आवर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन इनटू दैट मोड ऑफ पेपर्स. सो बच्चे इन कमिंग वीक्स एज एंड व्हेन वी आर फिनिशिंग अप विद टर्म 1, वी विल बी स्टार्टिंग अप विद टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन द मॉडल पेपर्स दैट सीबीएसई रिलीजेस. तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़े दिनों में सैंपल पेपर्स रिलीज हो जाएंगे सीबीएसई की. सो वी गेट एन आइडिया about difficulty levels and we then start up making tests based on that, and then we have a good practice before term 1 comes. See Arham, refractive index बचे करना है क्योंकि reflection and refraction के चैप्टर में से कुछ डिलीट नहीं हुआ है. so refractive index तो वही है, तो उसमें कुछ भी नहीं हम छोड़ेंगे, everything has to be done. yes, human eye and colorful world, defects का जो पोर्शन है वो आप नहीं करोगे. ठीक है. डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर करेक्टिव मेजर्स वो सिलेबस में नहीं है. ठीक है राम, इज दैट क्लियर? ऑलराइट, चलो. ओके. सो बच्चे इन द प्रीवियस क्लास वी हैड फिनिश्ड अप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. हमने ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया था. ठीक है. बच्चे जस्ट अ मोमेंट. Okay. So bache, in the previous class we had finished up with chemical properties of acids and bases. उसमें हमने ये सारी properties discuss कर ली थी. Today bache, I'll be just mainly focusing on your NCERT book because there are many activities which we have to pick up. So it is something that we will have to refer to NCERT and look at the activities, and then we'll decide what features do acids and bases have in common.
सो बच्चे एक्टिविटी 2.8, बच्चे जनरली व्हाट विल बी पिकिंग अप इज वी विल बी सीइंग व्हाट एसिड्स एंड बेसेस दे हैव इन कॉमन। एसिड और बेसेस में कॉमन क्या होता है, दिस इज व्हाट वी हैव टू पिक अप टुडे फॉर मेजर डिस्कशन। सो बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट एसिड्स एंड बेसेस, what are some of the common properties that you can see? ठीक है, so we'll be discussing these based on various activities. तो बच्चे हमने एक एक्टिविटी देखी थी, एक्टिविटी 2.3 where we saw that all acids generate hydrogen gas on reacting with metals. This is something we saw. तो बच्चे यहां एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ आ रही है, दैट हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स। और बच्चे ये तो हम डेफिनेशन में भी सीख चुके हैं कि एसिड इज एनी सब्सटेंस which on dipping in water or mixing with water releases hydrogen ions. All right, so any acid is any substance which will generate hydrogen gas on reacting with metals. तो बच्चे let us try to understand this with an activity, whether all compounds containing hydrogen are acidic or not. बच्चे ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। ओके, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जिनमें सब में हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होते हैं कि उनका नेचर कुछ और भी हो सकता है। तो बच्चे एक्टिविटी 2.8 व्हाट वी विल बी डूइंग इज विल बी टेस्टिंग दिस प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बच्चे ये हम प्रॉपर्टी किस बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऑलराइट, सो बच्चे इन एक्टिविटी 2.8 व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू टेक वेरियस सब्सटेंसेस, we'll take solutions of glucose, alcohol, hydrochloric acid, sulfuric acid. बच्चे ये जितने कंपाउंड्स हैं इन सब में हाइड्रोजन होता है। अगर आप ग्लूकोज देखो, ग्लूकोज हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C6H12O6, तो इसमें हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। अल्कोहल बच्चे कोई भी ले लो, उसमें कॉमन अल्कोहल लेते हैं एथेनॉल, C2H5OH, तो इसमें भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्रिक एसिड H2SO4, तो ये कुछ कॉमन सब्सटेंसेस हैं बच्चे जिनमें हाइड्रोजन है। अब हमें टेस्ट करना है कि किसके सॉल्यूशन में से करंट इजीली पास होता है। तो बच्चे व्हाट वी विल डू फॉर दिस, वी विल सेट अप, वी विल टेक अ कॉर्क, एक छोटा कॉर्क का पीस लेंगे, उसपे बच्चे 2 आयरन नेल्स लगाई हैं हमने, ठीक है, और उन आयरन नेल्स के एंड से हम बच्चे वायर्स निकाल के बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है हमने, बीच में एक बल्ब रखा है और स्विच रखा है। एंड बच्चे इफ यू केयरफुली नोटिस, इस बीकर के अंदर हम फिर ये सॉल्यूशंस डालेंगे एक के बाद एक। तो पहला जो सेटअप है बच्चे, इसके अंदर दिखाया है कि हमने सॉल्यूशन डाला है HCl। तो बच्चे जब आप सॉल्यूशन डालोगे, as soon as you put solution into the beaker, तो what is going to happen, बच्चे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे पहले ये सॉल्यूशन नहीं था तो आपने जो नेल्स हैं उनको कॉर्क पे लगाया है, एंड कॉर्क इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। पर जैसे ही हम उसके अंदर HCl सॉल्यूशन डालेंगे तो बच्चे यहाँ जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? HCl produces H plus ions. HCl produces H plus ions, which lead to conduction of electricity. As a result, your bulb will glow. Okay. उसके बाद बच्चे अगर मैं सल्फ्रिक एसिड लूं, सेम सेटअप, उसमें आपने सल्फ्रिक एसिड भरा, तो विल यू ऑब्जर्व बल्ब ग्लोइंग? क्या आप ऑब्जर्व करोगे कि बल्ब ग्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा? व्हाट डू यू थिंक, बल्ब ग्लो होगा? जब हम सल्फ्रिक एसिड डालेंगे, यस, बल्ब विल ग्लो। ठीक है, बल्ब सल्फ्रिक एसिड के साथ भी ग्लो होगा, क्योंकि बच्चे वो भी हाइड्रोजन आयन बना रहा है। पर बच्चे नेक्स्ट जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, नेक्स्ट वी विल टेक अप ग्लूकोज फर्स्ट। आपने इसके अंदर ग्लूकोज डाला, तो बच्चे व्हाट इज गोइंग टू हैपन? डू यू थिंक नाउ बल्ब विल ग्लो?
बच्चे जब आप ग्लूकोज डालोगे बल्ब विल नॉट ग्लो, इट विल नॉट ग्लो। अब बच्चे हाउ विल यू जस्टिफाई दिस ऑब्जर्वेशन, आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? अब बच्चे इसके पीछे एक बहुत सिंपल रीजन है। अगर आप बच्चे एसिड को देखते हो, इफ यू एवर ऑब्जर्व एन एसिड, एसिड on dissolving in water produces H plus ions, and these H plus ions help to transport electricity. They help to transport or carry electricity. All right. पर बच्चे अगर हम ग्लूकोज का सोल्यूशन ले रहे हैं, ग्लूकोज और अल्कोहल इनका सोल्यूशन ले रहे हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग बच्चे? दे बोथ डू नॉट ब्रेक इनटू आयंस, they do not break into ions, do not break into ions, ये आयंस में ब्रेक नहीं होते। तो बच्चे जब ये आयंस में ब्रेक डाउन नहीं हो रहे हैं, तो डू यू थिंक दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? नो बच्चे, दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रीजन बीइंग, क्योंकि ये आयंस प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, तो बच्चे सोल्यूशन के थ्रू करंट पास नहीं होगा। तो बच्चे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एसिड की डेफिनेशन आ गई यहाँ। एसिड इज एनी सब्सटेंस व्हिच विल प्रोड्यूस H प्लस आयंस। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जिसके अंदर हाइड्रोजन है वो एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि देखो जैसे ग्लूकोज है, ये हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं करता, इट डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, सो देयर इज नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेम इज द केस विद अल्कोहल, अल्कोहल के थ्रू भी करंट पास नहीं हो रहा बच्चे, क्योंकि वो भी H प्लस आयंस प्रोड्यूस नहीं करता। तो बच्चे जो हमने एसिड की डेफिनेशन लिखी थी ना, वो यहाँ प्रूव हो गया। एसिड इज एनी सब्सटेंस, व्हाट इज एसिड? एसिड इज एनी सब्सटेंस व्हिच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर विल प्रोड्यूस H प्लस आयंस। और ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो जो चीज हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगी दैट विल बी कंसिडर्ड एसिडिक। ओके, सो एक्टिविटी 2.8, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। ओके, यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे। लेट्स से यू हैव एसिटिक एसिड CH3COOH। बच्चे डू यू थिंक इट्स सॉल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? एसिटिक एसिड, vinegar, will it conduct electricity? Okay, तो बच्चे एसिड है तो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पर बच्चे जब आप इसको वाटर में मिलाओगे, हाउ इज इट गोइंग टू डिसोसिएट? तो बच्चे कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आती है कि इसके अंदर 3 ये और 1 4 हाइड्रोजन है, तो इट विल फॉर्म 4 H प्लस आयंस। पर बच्चे दिस अजम्पशन इज रॉन्ग। इस तरीके से नहीं सोचना हमने कि इसमें 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन आयंस बनाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप बच्चे इसको पानी में डिसॉल्व करोगे, इट इज गोइंग टू फॉर्म एसिटेट आयन CH3COO माइनस प्लस H प्लस। सिर्फ ये वाला जो आयन है बच्चे, ये डिसोसिएट होके अलग होता है। ओनली दिस आयन, ये जो आयन प्रेजेंट है, सिर्फ बच्चे ये डिसोसिएट होता है, दिस वन, दैट्स इट। आपने कभी ये नहीं सोचना कि 3 हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे इसमें या 4 निकलेंगे। बच्चे जितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे नहीं निकलेंगे। इसमें एसिटेट आयन बनेगा एक, दिस इज एसिटेट आयन, दिस इज एसिटेट आयन, एंड दिस इज H प्लस। तो यहां सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन बन रहा है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये एग्जांपल याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन में भी आ जाता है कि एसिटेट आयन में कितने हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, या एसिटेट जो आपका एसिटिक एसिड है उसमें 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर ये कितने आयंस बनाएगा? ठीक है, ये 4 नहीं बनाएगा बच्चे, 1 ही बनाएगा। So you have to keep this example in your mind. अब बच्चे सिमिलरली
अगर हम ये एक्सपेरिमेंट जो हमने एक्टिविटी अभी की है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाली, इफ यू परफॉर्म दिस एक्टिविटी विद NaOH KOH solution, do you think their solution will conduct electricity? तो इसका आंसर होगा yes, they will also, their solutions will also conduct electricity. अब अच्छा उसके पीछे क्या रीजन है? when you dissolve them in water, जब आप इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हो तो क्या होता है? they form OH minus ions. और बच्चे अगर आयंस बन गए हैं तो आयंस कैन इजीली हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ करंट. तो बच्चे ऐसा कोई सब्सटेंस जो आयंस बनाता हो सॉल्यूशन में, दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो ग्लूकोज के सॉल्यूशन में आयंस नहीं बनते तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. अल्कोहल के सॉल्यूशन में करंट नहीं पास होता क्योंकि वो H+ आयंस में डिसोसिएट नहीं होता. ओके, सिमिलरली अगर आप बेसेस को देखो तो बेसेस आल्सो प्रोड्यूस OH माइनस आयंस, सो देयर सॉल्यूशंस आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं बच्चे. What happens to an acid or base in a water solution? बच्चे अगर आपके पास कभी एसिड या बेस है, ठीक है, वाटर सॉल्यूशन में, तो बच्चे व्हाट इज गोइंग टू हैपन? तो बच्चे एक्चुअली यहां हमें क्या क्वेश्चन देना है? हमें यहां क्या क्वेश्चन का आंसर देना है कि एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में ही H+ आयंस बनाते हैं या जब वो ड्राई होते हैं या अपने खुद के फॉर्म में होते हैं तब भी वो H+ आयंस बनाते हैं? तो ये इंटरेस्टिंग एक बहुत एक्टिविटी है जो हमें यहाँ करके देखनी है. व्हाट वी हैव टू डू, एक्टिविटी 2.9, हमें यहाँ क्या करना है? वी हैव टू टेक 1 ग्राम सॉलिड NaCl. अच्छा, एक टेस्ट ट्यूब में 1 ग्राम we have to take 1 gram solid sodium chloride in a clean dry test tube. all right, इसके अंदर बच्चे हम क्या करेंगे? we will add few drops of concentrated sulfuric acid. अब बच्चे first try to write the reaction कि यहाँ क्या रिएक्शन होगा. बच्चे if I look at the activity given, I have NaCl in the test tube, NaCl in the test tube plus concentrated sulfuric acid, इसके कुछ ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप्स, इन दोनों मिक्सचर्स को हमने मिक्स कर लिया आपस में. बच्चे व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यू आर गोइंग टू गेट सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस HCl गैस. अब बच्चे ये जो HCl गैस है ड्राई होगी, सूखी होगी. अब बच्चे what was the litmus test for acids? एसिड्स का लिटमस टेस्ट क्या है? अगर बच्चे आप कभी भी ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के कांटेक्ट में लेके आओ तो इट विल टर्न रेड. तो बच्चे व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू टेस्ट दिस. HCl के पास लाएंगे ब्लू लिटमस पेपर, पर बच्चे दिस लिटमस पेपर शुड बी ड्राई. ये लिटमस पेपर भी ड्राई होना चाहिए. ओके, जो गैस निकल रही है HCl वो भी ड्राई है और जो ब्लू लिटमस पेपर है वो भी ड्राई. तो बच्चे इस HCl को अगर हम ब्लू लिटमस के ऊपर डालेंगे तो डू यू थिंक कलर विल चेंज? व्हाट डू यू थिंक, कलर विल चेंज और नॉट? ओके, तो बच्चे आप ये कह रहे हो कि कलर चेंज नहीं होगा. तो बच्चे इसके पीछे एक बहुत सिंपल रीजन है. एसिडिक सब्सटेंस क्या होता है बच्चे? जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस प्रोड्यूस करता है. अब बच्चे अगर हम HCl गैस को जो सूखी हुई है, ड्राई गैस, वी डू नॉट डिसॉल्व इट इन वाटर, तो क्या वो एसिड की तरह वर्क करेगी? ड्राई HCl गैस आप उसको वाटर में डिसॉल्व मत करो. अगर वाटर में डिसॉल्व नहीं करोगे तो वो H+ आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, डिसोसिएट नहीं होगा. और अगर बच्चे वो H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो विल इट गिव द ब्लू लिटमस पेपर टेस्ट? तो उसका आंसर होगा नो. तो बच्चे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है. एसिड्स एंड बेसेस दे विल ओनली शो देयर प्रॉपर्टीज व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर.
क्यों? क्योंकि जब आप उन्हें वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो डिसोसिएट होंगे, डिसोसिएट होके वो क्या करेंगे? दे विल प्रोड्यूस आयंस, and these ions are responsible for giving the accurate tests related to acids and bases. ऑलराइट, अगर बिल्कुल ड्राई कंडीशन होगी तो बच्चे कुछ नहीं होने वाला। अब बच्चे इसी एक्टिविटी में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताई हुई है। बच्चे जैसे आजकल मौसम चल रहा है, इट इज वेरी ह्यूमिड, एटमॉस्फेयर में बहुत मॉइस्चर है, तो बच्चे हमें यहाँ एक प्रिकॉशन लेना है एक्स्ट्रा जब भी हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, ताकि हमारा रिजल्ट सही आए। यू हैव टू प्लेस अ गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड बिफोर gases are collected for testing. अब बच्चे इसके पीछे क्या रीजन होता है? बच्चे ह्यूमिड वेदर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, तो जो गैस रिलीज हो रही है इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, और जब वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? ओके तो बच्चे हम यहाँ जो हमने यहाँ जो गार्ड ट्यूब लगाई है, इस गार्ड ट्यूब के अंदर बच्चे कैल्शियम क्लोराइड है। सो बिफोर द डिलीवरी ट्यूब आप यहाँ गार्ड ट्यूब लगा रहे हो जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड है। अब बच्चे व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड? कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है बच्चे? कैल्शियम क्लोराइड इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, CaCl2 इज हाइग्रोस्कोपिक, इसका क्या मतलब होता है? अब्सॉर्ब्स मॉइस्चर। Calcium chloride absorbs moisture which is present in air. बच्चे उससे क्या होगा? जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट आएगा, कलर चेंज नहीं होगा ब्लू लिटमस पेपर का, क्योंकि एयर की जो मॉइस्चर है उसके साथ जो आपकी गैस रिलीज हो रही है वो रिएक्ट करके आयंस प्रोड्यूस कर सकती है। तो उस चीज को हमें अवॉइड करने के लिए या ऑब्जर्वेशन सही देखने के लिए हमें क्या करना है? You will have to add a calcium chloride tube with delivery tube so that water is absorbed from the or moisture is absorbed from the atmosphere or the gas becomes perfectly dry, ताकि उसका टेस्ट वही आए, it will test blue litmus red. ठीक है बच्चे, is this clear? Okay. बच्चे अगर मान लो आपकी HCl गैस बिल्कुल ड्राई है, पर अगर हम उसमें वेट लिटमस पेपर उसके पास लाते हैं, ब्लू लिटमस, वेट ब्लू लिटमस पेपर, डू यू थिंक कलर विल चेंज? फिर कलर चेंज होगा? कलर चेंज होगा क्योंकि बच्चे जो मॉइस्चर लिटमस पेपर के अंदर प्रेजेंट है, द गैस विच इज रिलीज्ड विल कंबाइन with water present in litmus paper and it will produce H+ ions, तो कलर चेंज हो जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब अच्छा यहां हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा HCl और बेस के अंदर क्या है। बच्चा दिस वी हैव ऑलरेडी डन बिफोर, HCl dissolved in water it will produce H3O+ ions. How is H3O+ ion produced? जो H+ ions HCl से बनेंगे they will combine with water and it will form hydronium ions. तो एसिड वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोनियम आयंस को ज्यादा क्वांटिटी में क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ओके, एंड बेस जो ज्यादा क्वांटिटी में OH- आयंस प्रोड्यूस करेगा। चलो, आई होप दिस इज क्लियर, आगे चलते हैं। अब बच्चे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई हुई है, ऑल बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। इसके लिए मैंने बच्चे कल आपको एक टर्म कराया था, एल्कली। Alkali is a base that dissolves in water. Alkali क्या है? Alkali is a base which dissolves in water. पर बच्चे सारी bases जो होती हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती, so all bases are not alkalis. Okay, and they are soapy to touch
बिटर एंड कोरोसिव। पर बच्चे देखो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, नेवर टच और टेस्ट देम एज दे मे कॉज हार्म। ओके, इनसे हार्म बहुत ज्यादा हो सकता है, इंजरी हो सकती है, तो इसलिए इनसे हमेशा बच के रहना है। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं बच्चे। नाउ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। बच्चे रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बच्चे व्हाई रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एनीबॉडी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन है? हाँ जी अमानत। Because they neutralize the effect of each other. Okay, they neutralize the effect of each other. Okay, बच्चे होता क्या है, whenever you mix acid or base together, they neutralize each other. उन दोनों की रिएक्टिविटी जो है वो क्या होती जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। And when they react together, they will form salts. Okay, तो बच्चे ये जो रिएक्शन है जहां सॉल्ट बन रहा है, that is due to neutralization reaction. ऑलराइट, तो बच्चे एक्टिविटी 2.10 इसके अंदर आपको बताया गया है मिक्सिंग ऑफ एसिड विद वाटर। तो बच्चे वी नीड टू रिमेंबर व्हेनेवर यू आर डाइल्यूटिंग एसिड इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चे इसका मतलब क्या है कि अगर आप एसिड को पानी में मिक्स कर रहे हो तो बच्चे इट विल जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, और ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो इफ नॉट कंट्रोल्ड प्रॉपर्ली। तो कोशिश ये करते हैं जब भी डाइल्यूशन हो बहुत ध्यान से करें, कभी जल्दबाजी नहीं करते इसमें, बिकॉज इट कैन लीड टू एक्सीडेंट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको कैसे पता लगेगा? हम बीकर को टच करेंगे जिसमें रिएक्शन हो रहा है। ऑलराइट, ओके, हमने बच्चे यहाँ ये क्वेश्चन किया था, डाइल्यूशन में ही कर लिया था हमने, डाइल्यूशन ऑफ एसिड में। व्हेनेवर यू आर डाइल्यूटिंग एसिड्स, नेवर whenever we are diluting acid we should never put water into acid, but vice versa, acid should be put in okay, whenever acid is mixing with water what is going to happen, it is going to generate heat along with hydrogen ions. तो ये एक बच्चे रिएक्शन एक्टिविटी है जो हमें याद रखनी है। अब बच्चे यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दी है, अगर बच्चे आपके पास एक एसिड है, उस एसिड को मैंने वाटर के साथ मिक्स किया या आपने उसमें और वाटर डाल दिया, ऑलरेडी जो एक सोल्यूशन बना हुआ है, तो बच्चे व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस और OH- आयंस पर यूनिट वॉल्यूम? जैसे मान लो एक सोल्यूशन है जहां आपके पास एक क्वांटिटी है पर्टिकुलर H+ आयंस की। ओके, आपके पास वो जो क्वांटिटी है दैट इज बेस्ड ऑन योर वॉल्यूम। अब मान लो बच्चे वॉल्यूम जो है वो आपकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा इंप्रूव हो गई तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, अगर वॉल्यूम कम हो गया तो डिमांड भी कम है। इस चीज को हम कैसे समझाते हैं या कैसे हम लिख सकते हैं? अगर बच्चे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में मिक्स किया है तो इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली, ठीक है, और जब बच्चे डिसोसिएशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू फॉर्म H+ आयंस, सारा एसिड ही डिसोसिएट हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। पर बच्चे अगर किसी तरीके से आप उसमें और पानी मिक्स करो, अगर हम उसमें और पानी मिक्स करें जिसमें सोल्यूशन में ऑलरेडी H+ आयंस प्रोड्यूस है, तो बच्चे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपके जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है सोल्यूशन में कम हो जाएगी। ओके, सो ऑन डाइल्यूशन बच्चे जब भी हम वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं एसिड को तो बच्चे उससे क्या होता है, योर H+ आयंस और OH- आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दे विल डिक्रीज,
एंड बच्चे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। और बच्चे डाइल्यूशन तो आपने देखी होगी, आजकल कॉमन भी है। जैसे ही घर में कोई नया फोन आता है तो फोन बड़े के पास चला जाता है, छोटे के पास पुराना आ जाता है। ओके, तो डाइल्यूशन में क्या हो रहा है, आपके पास ऑलरेडी एक चीज है, H प्लस आयन या OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन है, आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया। वॉल्यूम मतलब उसमें पानी डाल दिया। तो बच्चे व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन वाटर इज पोर्ड इन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा? जो बच्चे वॉल्यूम है H प्लस आयंस का वो कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे एसिड ने तो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया। ओके, सो व्हेनेवर यू आर डाइल्यूटिंग इन एसिड द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, ये चीज याद रखनी है। Okay, let's take a quick look at the NCERT back exercises. Why do HCl and HNO3 show acidic characters in aqueous solutions, whereas solutions of compounds like alcohol and glucose, they do not show acidic character? Why? इस क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? Anybody? Solution of HCl and HNO3, what it will form? It will form H plus ions, so they are good conductors of electricity. पर बच्चे अगर आप कोई बेसिक सब्सटेंस ले लो, जैसे NaOH है, KOH है, उसको पानी में मिलाओ, तब भी वो करंट को क्या करेंगे? दे विल कोऑर्डिनेट, सॉरी दे विल नॉट कोऑर्डिनेट, दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक चीज है बच्चे जो बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, पर इसमें इंजरी भी हो सकती है कई बार। जब डाइल्यूशन कर रहे हैं तो एसिड स्पर्ट हो सकता है बाहर, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? अगेन वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। दे विल प्रोड्यूस H प्लस आयंस and these H plus ions act as charge carriers and current easily flow. Okay, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, why dry HCl gas does not change color of dry litmus paper? बच्चे ड्राई HCl गैस ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करता? क्योंकि बच्चे उसके अंदर H प्लस आयंस नहीं प्रोड्यूस होंगे, या तो वो सोल्यूशन में हो या लिटमस पेपर वेट हो, तभी कलर चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद है बच्चे डाइल्यूटिंग इन एसिड, व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड? बच्चे एसिड को हमेशा पानी में ऐड करते हैं, पानी को एसिड में नहीं ऐड करते। क्यों? रीजन, सेफ्टी मेजर। बच्चे हम हमेशा क्या करेंगे, हम एसिड को पानी में डालेंगे। अगर आप वाटर डालोगे एसिड में तो क्या होगा? इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड होल ऑफ एसिड विल टेंड टू रिएक्ट विद वाटर एट वंस। तो बच्चे दैट विल बी अ डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि उस सिचुएशन में जो आपका एसिड है इट माइट स्पर्ट आउट ऑफ द कंटेनर एंड इट विल कॉज इंजरी। उससे क्या होगी? इंजरी हो सकती है। उसके बाद बच्चे हाउ इज कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस H3O+ affected when a solution of an acid is diluted? अगर बच्चे आपके पास एक सोल्यूशन है जिसमें H3O+ आयंस है, आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसमें और पानी डाल दिया, तो बच्चे व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू अमाउंट ऑफ H+ आयंस? बच्चे उनका जो वॉल्यूम है ना डाइल्यूशन पे और कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे आपने सॉल्वेंट बढ़ा दिया, सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ गया। सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ेगा तो बच्चे सॉल्यूट मतलब H+ आयंस वगैरह एनर्जी वो तो उतनी ही है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड, उसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इज क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर एवरीबॉडी? क्वेश्चन नंबर 5, ऑलराइट। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, देखो concentration of OH minus affected when excess base is dissolved in solution of sodium hydroxide. Okay, तो बच्चे what is going to happen? वही same, sorry not same, excess base is added. Okay, यहाँ excess base डाल दी। अगर बच्चे excess base डाल दी तो क्या होगा?
वॉल्यूम ऑफ OH माइनस आयंस इंक्रीजेस, यानी बेसिक नेचर बढ़ेगा। अगर OH माइनस आयंस बढ़ेंगे on adding of a basic substance or base, then what is going to happen? बच्चे what is going to happen? The OH minus ion concentration it will increase, तो basic nature बढ़ेगा। चलो अब बच्चे coming to a very important concept, how strong are acid or base solutions? All right, before moving into this, बच्चे will first try to understand the utility. बच्चे let's say you have HCl of different concentrations. आपको नहीं पता किस HCl की अलग कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन अलग अलग बनाएंगे। अब बच्चे दोनों में हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला, दोनों में ब्लू लिटमस पेपर डाला। बच्चे व्हाट विल यू ऑब्जर्व? द कलर विल चेंज इन टू रेड, द कलर विल चेंज टू रेड इन बोथ। पर बच्चे कैन यू सीरियसली डिसाइड विच इज मोर एसिडिक और लेस एसिडिक? क्या हम इस इन्फो से डिसाइड कर पाएंगे? व्हाट डू यू से, कर पाएंगे? हाँ जी आकृति। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर आई हैव अ डाउट कि सर हाँ जी हम जो H+ आयंस होते हैं सर एसिड से, सर हम किसी और न्यूट्रल सब्सटेंस से निकल सर उसमें से रिलीज करवा सकते हैं क्या? आप कह रहे हो कोई ऐसा सब्सटेंस जिससे हम H+ आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं अदर देन एसिड? अदर देन वाटर सर, H2O। अदर देन वाटर? सर ओके, वाटर देखो बच्चे वाटर की अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो अगर हम पानी के अंदर उसको मिलाते तो वाटर क्या करता है? वाटर अपने डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से उसको डिसोसिएट कर देता है। तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो वाटर के अंदर देखते हैं। और बच्चे ऊपर से जो आपके एसिड्स हैं, एसिड्स आर आयनिक कंपाउंड्स, तो हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व्स पोलर कंपाउंड्स। ओके, तो बच्चे ऐसा कोई सॉल्वेंट जो चार्ज को सेपरेट कर पाए, अगर हम उसको यूज करेंगे तो देन ऑल्सो यू विल सी द इफेक्ट। पर जनरली बच्चे हम कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं जो डिसोसिएशन में हेल्प करेगा? दैट इज वाटर। इज दिस क्लियर? जी सर। सर Okay. वाटर सर हाँ सर वाटर के अलावा कोई और न्यूट्रल सब्सटेंस के नेम मतलब एक बार जानना था सर। बच्चे आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। देखो वो तो डिपेंड करेगा ना, पोलर सॉल्वेंट्स आपके पास हैं, जैसे वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो सबसे कॉमन तो यही है बच्चे सब्सटेंस जिसको हम यूज करते हैं। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब कोई और पोलर सॉल्वेंट अगर हम यूज करें, मान लो HCl है, HCl को सल्फ्रिक एसिड में डाल दिया, तो बच्चे दोनों ही पोलर सॉल्वेंट्स हैं, तो उनमें भी आयन डिसोसिएशन हो जाएगी। ठीक है, कोशिश ये करनी है कि पोलर कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में डालो। क्लियर? ओके सर। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके। तो ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस विल चेंज टू रेड इन बोथ द सॉल्यूशन A एंड B। पर बच्चे क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इनमें दोनों में स्ट्रॉन्ग या ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी है? कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड है? क्योंकि दोनों में ही कलर चेंज हुआ है। सिर्फ कलर चेंज देख के आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? सिमिलरली अगर आपके पास NaOH है, NaOH की अलग अलग कंसंट्रेशन है, A एंड B दोनों की अलग अलग कंसंट्रेशन है, आपको नहीं पता किसमें ज्यादा NaOH है किसमें कम है। ठीक है, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कौन सा कम डाइल्यूट है, ये हम इंडिकेटर से नहीं बता पाएंगे। जैसे मान लो आपके पास रेड लिटमस पेपर है, दोनों की NaOH की कंसंट्रेशन डिफरेंट है बच्चे, आपने इसमें रेड लिटमस डाला, इट विल टर्न ब्लू। अब बच्चे वही सेम चीज आप थोड़ी बता पाओगे कि किसमें डाइल्यूशन ज्यादा है या कम है। तो बच्चे इसलिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया? वी हैव डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ pH। बच्चे pH will actually help us to decide
कि सब्सटेंस कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है या न्यूट्रल है। अब बच्चे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म पीएच? पीएच क्या है बच्चे? व्हेन यू टॉक अबाउट पीएच, पीएच इज अ कॉन्सेप्ट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोरेनसन। ये कॉन्सेप्ट बच्चे सबसे पहले सोरेनसन ने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, ही वाज अ केमिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। अब बच्चे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म पीएच? पीएच का क्या मतलब होता है? इट सिंपली मींस पोटेंस डी हाइड्रोजन आयंस, पोटेंस डी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। ओके बच्चे, पीएच क्या डिनोट करता है? पीएच डिनोट करता है कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसेंट्रेशन है। एंड बच्चे वी एक्चुअली नो कि अगर मुझे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन पता है तो उससे मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कम एसिडिक है, एंड वाइस वर्सा। तो पीएच इज अ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट और ये डेवलप किया गया था सोरेनसन ने। ओके, तो बच्चे जब हम पीएच की बात करते हैं, पीएच को हम एक्चुअली कैसे डिनोट करते हैं? वी डिनोट इट विद हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है या नंबर होता है जिससे आप डिसाइड करोगे कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो बच्चे जो जनरल हम पीएच की रेंज लेते हैं, द जनरल पीएच रेंज, इट इज फ्रॉम 0 to 14। द जनरल पीएच रेंज इट इज फ्रॉम 0 to 14, 0 being acidic, 14 being basic। अब देखो इसकी रेंज को हम कैसे डिवाइड करते हैं? 0 to 7, this is acidic range। 0 to 7 is acidic range। अगर बच्चे एग्जैक्टली 7 pH है, दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर 7 एग्जैक्ट वैल्यू है 7, तो बच्चे दिस डिनोट्स न्यूट्रल। ऑलराइट, पर बच्चे अबव 7, मोर देन 7, या आप लिख सकते हो 7 to 14, दिस इज बेसिक। तो बच्चे आपका जो पीएच स्केल है वो अलग अलग रेंजेस में डिवाइडेड है। पीएच 0 to 7 एसिडिक, एग्जैक्टली 7 न्यूट्रल, 7 to 14 दैट इज बेसिक रेंज। ऑलराइट, तो बच्चे इसके लिए समझने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको समझाया गया है कि हम पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। वी ट्राई टू कैलकुलेट पीएच ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन द सॉल्यूशन। तो देखो यहां बच्चे आपको बताया गया है pH 0, pH 14। अब बच्चे हाउ डू वी यूज pH? अगर देखो pH की वैल्यू है एक सॉल्यूशन की, ओके जस्ट अ मोमेंट, लेट्स से सॉल्यूशन A, सॉल्यूशन B। सॉल्यूशन A हैज pH of 3, सॉल्यूशन B हैज pH of 5। अब वी नो बच्चे, हमें ये बात पता है कि 0 to 7 एसिडिक रेंज है। ऑलराइट, पर बच्चे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक है, विच इज मोर एसिडिक, तो बच्चे इसका आंसर होगा A, बिकॉज इट हैज pH of 3। कंपैरिजन में B हैज pH of 5। आप बोलोगे दोनों ही एसिडिक हैं, पर बच्चे pH A is more acidic, pH of A is more acidic, pH of B is less acidic। अब इसके पीछे रीजन क्या है बच्चे? ये जो pH 3 है, व्हाट इज दिस डिनोटिंग? pH 5 ये क्या डिनोट कर रहा है बच्चे? ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना, ये डिनोट कर रहा है कि उस सॉल्यूशन के अंदर कितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है। बच्चे pH 3 का मतलब क्या है? 10⁻³ मोल पर लीटर, इतने हाइड्रोजन आयन है सॉल्यूशन में। ओके, pH 5 का क्या मतलब है? 10⁻⁵ मोल पर लीटर। तो बच्चे अगर मैं कंपेयर करूं, जिस सब्सटेंस का pH 3 है उसके अंदर ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है कंपैरिजन टू सॉल्यूशन विच हैज pH 5। ओके, 10⁻⁵ कम हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है, 10⁻³ ज्यादा कंसेंट्रेशन है। ओके, चलो मैं आपको इसके थोड़े से और सिंपल से एग्जांपल देता हूं। लेट्स से you have pH 5, you have a solution which has a pH 5,
other solution which has pH of 9. तो बच्चे which is more basic? Which is more basic, A और B? तो बच्चे आप इसका क्या आंसर दोगे? Which is more basic? Okay, तो बच्चे इसका आंसर है B. B is more basic. Why B is more basic? मैं इस pH 9 को, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन हम कैसे लिखते हैं? 10 raised to power minus pH. जो भी वैल्यू pH की दी होती है ना, उसको 10 raised to power minus pH करके लिख दो तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बन जाएगी. तो बच्चे B के अंदर कितने हैं? 10 raised to power minus 9 मोल पर लीटर. इसके अंदर कितना है? 10 raised to power minus 5 मोल पर लीटर. तो ऑब्वियसली बच्चे A के अंदर ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है B के मुकाबले, तो B इज मोर बेसिक. अगर बच्चे आपसे ये पूछा जाता है विच इज मोर एसिडिक, तो बच्चे वो तो साफ ही पता लग रहा है, मोर एसिडिक इज A, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन B के मुकाबले ज्यादा है. ऑलराइट, तो बच्चे देखो यहां एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है. व्हेन यू मूव, when you are moving from 0 1 2 3, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी बेसिक नेचर बढ़ेगा, बेसिक नेचर इंक्रीजेस. ओके, बेसिक नेचर इज गोइंग टू इंक्रीज. और जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ेगी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू एसिडिक नेचर? एसिडिक नेचर डिक्रीजेस. ऑलराइट, तो जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ेगी बच्चे, बेसिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर कम होगा. व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ पीएच वैल्यू डिक्रीजेस? अगर पीएच वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्या होगा बच्चे? व्हेन पीएच वैल्यू डिक्रीजेस, बेसिक नेचर विल डिक्रीज, बेसिक नेचर डिक्रीजेस एंड एसिडिक नेचर इंक्रीजेस. जैसे जैसे पीएच वैल्यू कम होगी, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, बेसिक नेचर कम होगा. ओके, ये चीज याद रखनी है. अगर पीएच वैल्यू बढ़ रही है तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है, एसिडिक नेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है. ओके, अब यहां बच्चे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है. लेट्स से वी हैव टू सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन A एंड सॉल्यूशन B. वन हैज pH of 3, another has pH of 4. तो बच्चे दोनों में कितने हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन का फर्क है? अगर मैं बच्चे A को देखूं तो यहां H प्लस आयन कंसेंट्रेशन हो जाएगी 10 raised to power minus 3. यहां H प्लस की हो जाएगी कंसेंट्रेशन 10 raised to power minus 4 मोल पर लीटर. तो बच्चे जरा इनको कंपेयर करके देखिए कितना टाइम का फर्क पड़ा है. लेट्स सी कितने हाइड्रोजन आयंस का फर्क पड़ा है A by B. लेट्स सी A is 10 raised to power minus 3, B is 10 raised to power minus 4. तो बच्चे A to B कितना फर्क है? 10 टाइम्स का फर्क है. तो बच्चे A has 10 times more hydrogen ion concentration. A has 10 times more hydrogen ion concentration in comparison to A has 10 times more H plus ion concentration than B. ओके, तो बच्चे यहां एक बहुत सिंपल लॉजिक है. अगर पीएच का स्केल 1 पॉइंट ऊपर जा रहा है, 1 पॉइंट ऊपर गया है, तो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन में कितना फर्क पड़ता है? 10 टाइम्स. लेट्स से यू हैव पीएच ऑफ 5 एंड पीएच ऑफ 7. बच्चे इनको कंपेयर करके देखिए, इसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन हो जाएगी बच्चे 10 raised to power minus 5. यहां H प्लस की कंसेंट्रेशन है 10 raised to power minus 7. कंपेयर देम, 2 पॉइंट्स का फर्क पड़ा है. तो बच्चे A solution has 100 times more. A solution has 100 times more H plus ions. So when बच्चे pH increases by 1 point, 10 times का फर्क पड़ेगा. Okay,
So any substance which pH less than the other will have more hydrogen ion concentrations and it will be more acidic. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो बच्चे हमें याद रखना है. देखो इसको एनसीईआरटी की बुक में भी समझाया गया है. बच्चे इफ यू टॉक अबाउट पीएच 0 तो यहाँ मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है और बच्चे OH माइनस आयन कंसंट्रेशन यहाँ कम है. तो ग्रेजुअली जैसे जैसे आपका पीएच बढ़ेगा व्हाट इज गोइंग टू हैपन, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, OH माइनस आयंस इंक्रीज, H प्लस आयंस डिक्रीज जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी. दिस इज द रीजन बच्चे बेसिक नेचर इंक्रीजेस, बेसिक नेचर इंक्रीजेस. अब बच्चे एग्जैक्टली न्यूट्रल पे क्या होगा, बच्चे न्यूट्रल पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन सेम होती है. A neutral solution will have H plus ions and OH minus ions in equal concentration. That is 10 raised to power minus 7. आप 7 से ऊपर जाओगे तो OH minus ion की concentration बचे क्या होगी, it would be more than H plus ions. Okay, चलो let me also write this for you. अगर बचे कोई substance acidic है, that means H plus ion concentration is more than OH minus. बच्चे if a substance is neutral, अगर substance neutral है तो H plus ion concentration will be equal to OH minus. पर बच्चे अगर substance basic है तो what is going to happen, H plus ion concentration will be less than OH minus ions. Okay, हमें ये नहीं कहना है कि एसिडिक सोल्यूशन के अंदर OH माइनस आयंस नहीं है, होते हैं, पर बच्चे एसिडिक सोल्यूशन के अंदर H प्लस आयन OH माइनस से बहुत ज्यादा है इसलिए वो एसिडिक है. न्यूट्रल पे दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, जैसे जैसे आप बेसिक नेचर बढ़ाओगे OH माइनस आयन बढ़ेगा. तो बच्चे यहाँ किसी सब्सटेंस का जो pH 0 है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस होता है, दैट इज 1m HCl, 1 molar HCl, it has a pH of 0 and pH 14 1 molar NaOH. So 1 molar HCl it has a pH of 0 and 1 molar NaOH it has pH of 14. तो बच्चे ये एक्सट्रीम एंड्स पे दो सब्सटेंसेस हैं, इनके बीच में दूसरे सब्सटेंसेस आएंगे. न्यूट्रल पे है वाटर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड OH माइनस आयंस इन इट आर सेम, तो इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर एवरीबॉडी, यहां तक समझ आ गया? हाँ जी आकृति. Sir, sir, is there any neutral substance other than water? बेटा न्यूट्रल सब्सटेंस, Yes, sir. Other than water, sir. ये तो बेटा गूगल पे भी देख सकते हैं कि न्यूट्रल सब्सटेंस, मुझे तो वाटर का एग्जांपल याद आ रहा है. ठीक है ना. ये तो गूगल पे हमें मिल ही जाएगा कौन कोई और न्यूट्रल सब्सटेंस हो सकता है. वैसे तो बच्चे जो आयनिक प्रोडक्ट वाटर का बनता है दैट इज 10 raised to power minus 7 into 10 raised to power minus 7. Anisha, you cannot say blood is exactly neutral pH पे तो नहीं होता. I think 6.7 या कुछ होगा. It is not exactly neutral. Pure water is neutral, exactly neutral 7. ठीक है, तो थोड़ा बहुत pH ऊपर नीचे हो सकता है. बच्चे देखो अगर हम कह रहे हैं 6.8 तो इसको भी हम न्यूट्रल ही मान लेते हैं क्योंकि 7 से ज्यादा दूर नहीं है. हाँ, पर अगर एग्जैक्टली न्यूट्रल बोलना है तो बच्चे फिर तो आपको वाटर ही बोलना पड़ेगा, प्योर वाटर. अनीशा, आई डोंट थिंक सो ब्लड इज न्यूट्रल, इसका पीएच भी ऊपर नीचे होगा साथ से. एक बार गूगल पे चेक करो. स्टमक एसिड इज 1.2 to 1.5 pH. यस, दैट्स करेक्ट. देखो यहाँ लिखा हुआ है प्योर वाटर और ब्लड, पर बच्चे ब्लड का देखो 7.4 लिखा हुआ है, एग्जैक्टली न्यूट्रल नहीं है. प्योर वाटर इज सेड टू बी एग्जैक्टली न्यूट्रल, हम बोल सकते हैं कि 7 है, ब्लड का 7.4 लिखा है. अनीशा, आई एम सेइंग एग्जैक्टली 7, एग्जैक्टली 7. ठीक है ना.
तो डिस्टिल्ड वाटर अगर हम लेंगे, डिस्टिल्ड वाटर लेंगे तो डिस्टिल्ड वाटर इज एग्जैक्टली 7। ठीक है, अब ये प्योर वाटर, अब आई थिंक उसी सेंस में बोल रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर इज एग्जैक्टली 7 कह देते हैं हम, ब्लड एग्जैक्टली 7 नहीं होगा। ठीक है, उस सेंस में कह रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो फिर हम कह देते हैं न्यूट्रल है। 6.8, 6.9, 7.2 वी से इट इज न्यूट्रल। ओके, तो बच्चे देखो यहाँ अलग अलग सब्सटेंसेस के आपको पीएच अप्रोक्सीमेट दिए हुए हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज कॉमनली यूज्ड इन जेलोसिल, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर में आगे बच्चे जब हम सॉल्ट प्रिपरेशन करेंगे तो उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। गैस्ट्रिक जूस 1.2 HCl प्रेजेंट होता है, लेमन जूस 2.2। और बच्चे यहाँ पीएच पेपर शो किया गया है आपको। पीएच पेपर विल शो डिफरेंट शेड्स एट डिफरेंट पीएच रेंजेस। तो बच्चे इट इज अ फार बेटर इंडिकेटर देन नॉर्मल लिटमस पेपर। ओके, तो ये एक चीज है जो मतलब हमें बहुत यूजफुल होती है व्हेन यू हैव टू डिस्क्राइब व्हाट टू से द एसिडिक और बेसिक नेचर। ओके अनेशा, डिस्टिल्ड वाटर हैज एग्जैक्टली 7 pH। बाकी गूगल पे देख सकते हैं कोई ऐसा और सब्सटेंस है जिसका एग्जैक्टली 7 pH होता है, क्योंकि देखो वाटर का क्यों एग्जैक्टली 7 आता है, उसका आयनिक प्रोडक्ट ऐसा है 10⁻⁻7 H प्लस आयंस होते हैं इसमें, और 10⁻⁻7 OH माइनस आयंस होते हैं। तो इसका आयनिक प्रोडक्ट आता है 10⁻⁻14 एग्जैक्टली 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका पीएच जो 25 डिग्री सेल्सियस पे आता है एग्जैक्ट प्योर वाटर, दैट शुड बी 7। ओके, दिस इज द रीजन। आई डोंट थिंक सो कोई और सब्सटेंस होगा जिसमें ये प्रॉपर्टी हो सकती है, पर गूगल में देखना पड़ेगा बच्चे। लेट्स आई थिंक नहीं होगी, पर व्हाट क्रॉप्स अप ऑन गूगल वो तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो गूगल पे एक बार देख सकते हैं। आई डोंट थिंक सो प्योर वाटर के अलावा किसी का 7 बन सकता है एग्जैक्ट पीएच, फिर भी चेक कर सकते हैं। ओके सर, गूगल भी सिर्फ वाटर ही कह रहा है। ओके बच्चे, उसके पीछे रीजन है कि उसका आयनिक प्रोडक्ट ऐसे है 10⁻⁻7 10⁻⁻7। तो एग्जैक्ट 7 का पीएच तो वाटर का ही आने के पूरे चांसेस थे। दिस इज व्हाट आई सेड। तो गूगल पे भी वाटर ही बोल रहा है। ऑलराइट, तो प्योर वाटर। ओके ऑलराइट, तो बच्चे दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। ऑलराइट बच्चे, इसके बाद एक टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। बच्चे विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, दिस आल्सो विल रिक्वायर सम डिस्कशन। तो बच्चे आज हम यहीं रुकेंगे, वी विल स्टॉप हियर टुडे। प्लीज रिवाइज इट थ्रू, इसको अच्छी तरह रिवाइज करिएगा। ऑलराइट, उसके बाद हम बच्चे वंस वी फिनिश अप यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, we'll be proceeding towards preparation of salts. Okay, so salt preparation जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे आपको केमिकल रिएक्शंस वगैरह मिलेंगे। So that we will be picking up once we finish up applications of pH in our daily life. All right, चलो बच्चे, I'll stop here today. See you all in the next class.